السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم۔ سکندرآباد BJP کنٹسٹڈ MLA بنڈاپلی ستیش جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پر واقع ایک فلیٹ سے انہیں کیا گرفتار اور ان کے پاس سے 17,75,000 روپے قبضے میں لے لیے۔ اس کے علاوہ 12 افراد بھی گرفتار۔ مادنا پیٹ PS لمٹس کرماگوڑا شانتی نگر میں راشن شاپ نمبر 155 میں کام کرنے والے شیخ حمید پر 8 افراد نے معمولی سی بحث کے بعد کر دیا حملہ۔ شہر حیدرآباد کی گوشہ محل حلقے منگلہاٹ ڈویژن دھولپیٹ جالی ہنومان مندر کے پاس نالے کا پانی سڑک پر بہہ رہا، جس کی وجہ سے آنے جانے والے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ فلک نما پولیس نے ایڈیشنل انسپکٹر KS روی کرائم ٹیم کے نگرانی میں 10 مسنگ سیل فونز کو ٹریس کرتے ہوئے طلب کر لیا اور ان کے مالکان کے حوالے کر دیا، جس کی کل مالیت 1,80,000 روپے بتائی گئی۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ریاست میں کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کیا منعقد۔ مرکزی محکمہ داخلہ نے BJP کے رکن پارلیمنٹ D اروند کو رضاکارانہ طور پر سبکدوشی حاصل کرنے والے بلیک کیٹ کمانڈوز اور BSF جوانوں کے علاوہ 4 مارشلز کے ساتھ خصوصی سیکیورٹی فراہم کی۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں راجیہ سبھا کی مخلوعہ نشست کے لیے ضمنی چناؤ کا شیڈیول کیا جاری۔ TRS کے رکن راجیہ سبھا بنڈا پرکاش کے استعفے کے باعث یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ شہر میں ایک بار پھر گرمی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ ہفتے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پرجا سنگرام یاترا کے اختتام پر تلنگانہ کا کریں گے دورہ اور رنگا ریڈی میں ایک جلسے عام سے کریں گے خطاب۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سکندرآباد BJP کنٹسٹڈ MLA بنڈاپلی ستیش پوکر کھیلتے ہوئے پائے گئے۔ بنجارہ ہلز پولیس نے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پر واقع ایک فلیٹ میں انہیں جوا کھیلنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس دوران 12 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں پولیس نے 6 خواتین اور 6 مردوں کو گرفتار کیا ہے اور پولیس نے ان کے پاس سے 17,75,000 روپے قبضے میں لے لیے اور مزید کارروائی شروع کر دی۔
मादना पेट पुलिस स्टेशन हदूद में कुरमागुड़ा शांति नगर में राशन शॉप नंबर 155 में काम करने वाले शेख हमीद नामी नौजवान पर 8 अफराद पर मुश्तमिल गैंग ने हमला कर दिया। बताया गया है कि मामूली सी बहस के बाद 8 अफराद ने हामिद पर हमला कर दिया, जिस पर शेख हामिद जख्मी हो गए। मुतासरा की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और पुलिस से इस दौरान इंसाफ की अपील की है। जी मैं छावनी नादली पेट में राशन की दुकान पर काम करता हूँ। कोई कस्टमर आके राशन लेने के से आए, थोड़े चावल कम होने की तरफ से बहस करे, फैला खोल के चावल डाले तक दोस्तों को बुला के 8 जने मिलके मेरे को दुकान में डाल के मारे, असली पे मारा पड़े, गुफत मारा मारे। उनको बहस करा तो बहस न तो करो भाई, बोले तो बहस करते जा रहूँगा, नहीं तुम गाली कैसा दे, बोले तो गाली में दिया भी है, गाली उन लोग दे के उल्टा मेरे को मारे, सेठ को भी मारे, दुकान में आके तोड़ फोड़ कर डाले छावनी में। बोले तो बात करे तो बस्ती वाले आए तो भाग जाऊँगा। हुकूमत से ये चाहते हो बोलो इंसाफ होना, हुकूमत से इंसाफ है कि इंसाफ होना। 8 जने मिल के मारे। कहाँ पर मारे? छावनी याकुतपुरा नादेली पेट। कहाँ पर आता है? सैदाबाद ये कौन सा लगता है? मादाना पेट। शहर हैदराबाद के गोशा महल हलके मंगलहाट डिवीजन धूलपेट जाली हनुमान मंदिर के पास नाले का पानी सड़क पर बह रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और उन पर गंदे पानी के छींटे भी उछल रहे हैं और इलाके में बदबू फैल रही है, जिस पर मुकामी लोगों ने इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एडिशनल इंस्पेक्टर के.एस. रवि की निगरानी में क्राइम टीम ने 10 मिसिंग सेल फोन्स को ट्रेस करते हुए बरामद कर लिया और उनके मालिकान को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनके फोन्स उनके हवाले कर दिए गए। इन तमाम 10 मोबाइल फोन्स की कुल लागत 1,80,000 रुपए बताई गई है, जिस पर फोन्स के मालिकान ने पुलिस स्टेशन के अमले और के.एस. रवि एडिशनल इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया। और उसमें कल फ़ोन करे थे, फ़ोन आपका रिकवर हो गया, मुझे आज बुला के दीजिएगा वो यहाँ के सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सर डी आई सरकार और उसमें कैमरा जो लगा बहुत बहुत शुक्रिया बुला के दिए मेरे को। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने बताया कि रियासत भर में धान की खरीदी का अमल इंतहाई खुशगवार तरीके से जारी है। अभी तक 4,61,000 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। 3,679 धान की खरीदी के मराकज पर 61,300 किसानों ने महकमे सिविल सप्लाईज को अपनी धान फरोखी है। उन्होंने बताया कि महकमे के पास खाली थैलों का वाफर स्टॉक मौजूद है और मजीद 31 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 7 करोड़ 8 लाख खाली थैले दस्तियाब हैं। मजीद 8 करोड़ थैलों के हुसूल के लिए टेंडर तलब किए जा रहे, जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अनकरीब 2.5 करोड़ थैले हासिल होंगे। कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने कहा है कि सरहदी अजला में 51 चेक पोस्ट कायम किए गए ताकि धान की दरमियानी अफराद को फरोख्त को रोका जा सके। 17 अजला में खुसूसी चेक पोस्ट का क़याम अमल में आया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रोजाना की बुनियाद पर धान की खरीदी की तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास धान की खरीदी के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं और अभी तक 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वरंगल, गदवाल, वनपट्टी, भोपालपल्ली और नागर कर्नूल में धान की खरीदी के मराकज बाद में कायम किए जाएंगे। इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज अनिल कुमार, जनरल मैनेजर प्रोक्यूरमेंट राजे रेड्डी, डिप्टी जनरल मैनेजर अरुण और दीगर मौजूद थे। मरकजी महकमे दाखिला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवानों के अलावा 4 मार्शल्स के साथ खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की है, जिनके अखराजात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बर्दाश्त करेंगे। डी अरविंद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से शिकायत की थी कि वो जब भी अपने हल्के लोकसभा निजामाबाद का दौरा कर रहे हैं, TRS की जानिब से रुकावटें पैदा की जा रही। उनके साथ बहस व तकरार करने के अलावा झगड़े
झगड़े किए जा रहे, उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही। उनकी दरख्वास्त पर मरकजी महकमे दाखिला ने उन्हें ये सिक्योरिटी फराहम की। हल्के लोकसभा निजामाबाद में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान तनाव भरा हुआ माहौल पाया जा रहा। हालत कशीदा है, जिसके तनाजुर में मरकजी महकमे दाखिला ने डी अरविंद को ये सिक्योरिटी फराहम की है। डी अरविंद ने मरकज से शिकायत की थी कि तेलंगाना की पुलिस उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। निजामाबाद पुलिस के खिलाफ पार्लियामेंट की तहरीक मुराद कमेटी से भी डी अरविंद ने शिकायत की है। सरकारी तौर पर उन्हें सिक्योरिटी फराहमी के मामले में ताखिर होने के सबब अमित शाह ऑफिस के मशवरे पर अरविंद ने VRS हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और BSF जवानों के साथ 4 मार्शल्स की खिदमत अपनी सिक्योरिटी के लिए हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की मखलुआ निशस्त के लिए ज़िमनी चुनाव का शेड्यूल जारी किया। टीआरएस के रुकन राज्यसभा बंड प्रकाश के इस्तीफे के बाइस ये निशस्त खाली हुई है और उनकी मियाद 2 अप्रैल 2024 तक थी। ज़िमनी चुनाव में मुंतखब रुकन राज्यसभा 2 अप्रैल 2024 तक बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 12 मई को एलामिया जारी किया जाएगा और 19 मई तक पर्चे जात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 20 मई को पर्चे जात की जाँच होगी और 23 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों की सूरत में 30 मई को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे रायदही होगी और शाम 5 बजे वोटों की गिनती के बाद नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर में एक बार फिर गर्मी की लहर पैदा हो सकती है, जबकि महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि हफ्ते से दर्जे हरारत में इजाफा होगा। गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जे हरारत में कदर कमी रही थी। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि शहर में एक बार फिर दर्जे हरारत 41 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा कि 9 मई तक मौसमी गर्मा रह सकता है। दर्जे हरारत 41-45 के दरमियान दर्ज होगा। ताहम शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का गर्ज चमक का भी इम्कान है। इलावा से आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में गर्मी शदीद होगी और दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होगा। इन अजला के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में 5 ta 9 मई कुछ मुकामात पर हल्की से औसतन बारिश की पेशकयासी भी की गई है। सरकारी सतह पर चीफ मिनिस्टर और वुज़रा के प्रोग्रामों में अवाम को जमा करने के लिए ओहदेदारों को मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहे किसी पार्टी को हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर के प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को मुतहरिक किया जाता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के तिरुपति में जलसे आम में शिरकत के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को ओहदेदारों की जानिब से 500 रुपए जुर्माने की धमकी दी गई। बताया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लीडर्स को ओहदेदारों की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुए, जिसमें कहा गया कि जो कोई वज़ीर आला के प्रोग्राम से गैर हाजिर रहेगा उसे 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बताया जाता है कि सरकारी मुलाजमीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान को आला ओहदेदारों की जानिब से जलसे आम में लाजमी शिरकत के लिए पाबंद किया गया। खवातीन के ग्रुप्स को 500 रुपए जुर्माने से मुताल्लिक धमकी के बारे में आला ओहदेदारों ने कोई तबसरा नहीं किया। इतलात के मुताबिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लीडर को 500 रुपए हर मेंबर को फीकस 150 रुपए जुर्माने की धमकी दी गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के इख्तिताम पर तेलंगाना का दौरा करेंगे और रंगारेड्डी में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का 14 मई को इख्तिताम होगा। ये यात्रा का दूसरा मरहला है। इसके इख्तिताम के मौके पर अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे और रंगारेड्डी में एक जलसे से खिताब करेंगे। बंडी संजय का इद्दा है कि उन्होंने अवाम से राब्ते मुस्तहकम करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा का एहतमाम किया है। अमित शाह तेलंगाना के अलावा मुल्क की दूसरी रियासतों आसाम, केरला, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा भी करेंगे। वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling.
complete bathroom remodeling, basement finishing and remodeling, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. सिकंदराबाद बीजेपी कंटेस्टेड एमएलए बंडापल्ली सतीश जुआ खेलते हुए पकड़े गए। बंजारा हिल्स पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़ एक फ्लैट से उन्हें किया गिरफ्तार और उनके पास से 17,75,000 रुपए कब्जे में ले लिए। इसके अलावा 12 अफराद भी गिरफ्तार। मादनापेट पीएस लिमिट्स कुर्मागुड़ा शांतिनगर में राशन शॉप नंबर 155 में काम करने वाले शेख हमीद पर 8 अफराद ने मामूली सी बहस के बाद कर दिया हमला। शहर हैदराबाद की गोशा महल हल्के मंगलहाट डिवीजन धूलपेट जाली हनुमान मंदिर के पास नाले का पानी सड़क पर बह रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना। फलकनुमा पुलिस ने एडिशनल इंस्पेक्टर के.एस. रवि क्राइम टीम के निगरानी में 10 मिसिंग सेलफोन्स को ट्रेस करते हुए तलब कर लिया और उनके मालिकान के हवाले कर दिया, जिसकी कुल मालियत 1,80,000 रुपए बताई गई। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में किसानों से धान की खरीदी के मसले पर महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ इजलास किया मुनक्किद। मरकजी महकमे दाखिला ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को रजाकाराना तौर पर सुबुगदोशी हासिल करने वाले ब्लैक कैट कमांडोज और बीएसएफ जवानों के अलावा 4 मार्शल्स के साथ खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में राज्यसभा की मखलूआ निशस्त के लिए ज़िमनी चुनाव का शेड्यूल किया जारी। टीआरएस के रुकन राज्यसभा बंडा प्रकाश के इस्तीफे के बायस ये निशस्त खाली हुई थी। शहर में एक बार फिर गर्मी की लहर पैदा हो सकती है, जबकि महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की कि हफ्ते से दर्ज हरारत में इजाफा होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के अख्ताम पर तेलंगाना का करेंगे दौरा और रंगारेड्डी में एक जलसे आम से करेंगे खिताब। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।